Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is scalar product of the two vectors. If we multiply the two vectors, the result is a scalar quantity. Such product is known as scalar product, or it is known as dot product. If the resultant product of the two vectors is a scalar quantity, such product is known as scalar product, or it is known as dot product. How we represent scalar product or dot product? We represent it by putting a dot between the two vectors. It may also be defined as the product of magnitude of the vectors and cosine of the angle between them. Consider we have two vectors A and B, which are making an angle theta with each other. Scalar product may also be defined as the product of magnitude of the vectors and cosine of the angle between them. Consider we have two vectors A and B. Their magnitudes are A and B, and theta is the angle between A and B. The magnitude of the scalar product can be found out by two methods. Consider we have two vectors A and B, which are making an angle theta with each other. We resolve B into two components by drawing perpendicular from head of vector B on A. Now B has two components, B perpendicular and B parallel. B perpendicular is equal to B sine theta and B parallel is equal to B cos theta. A dot B is equal to A dot B parallel to the A. So we ignore this component and we consider the parallel component. Both A and B parallel are in same direction, and then we get a maximum result. So A dot B parallel, which is equal to A B cos theta. Second method is, consider we have two vectors A and B. We resolve A into two components by drawing perpendicular from the head of vector A. So A has two components, A perpendicular to B and A parallel to B. A perpendicular is equal to A sine theta and A parallel is equal to A cos theta. And maximum result is along the B direction. जब ये दोनों A पैरेलल और B जब सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. इस वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं और हम कंसीडर कर रहे हैं उसका पैरेलल कंपोनेंट, तभी रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, मैक्सिमम. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A डॉट B और A का B वो कंपोनेंट जो B के पैरेलल हो. तो ये हमारे पास आ जाएगा A पैरेलल इज इक्वल टू A cos थीटा इंटू B. तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा A B cos थीटा. ये हमारे पास दो मेथड्स थे जिनसे हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की कि A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट B पैरेलल एंड B पैरेलल इज इक्वल टू B cos थीटा. तो ये रिजल्ट बनेगा A B cos थीटा. और दूसरा आपके पास है कि प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. पहला था प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. नाउ वी कंसिडर द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. तो ये हमारे पास A के दो कंपोनेंट्स बने, A परपेंडिकुलर और A पैरेलल. A परपेंडिकुलर इज इक्वल टू A साइन थीटा, A parallel is equal to A cos theta. We consider the component which is parallel to the B
that give us maximum answer. So we ignore a perpendicular which is equal to a sin theta. So a parallel into b, a parallel is equal to a cos theta into b. The result is ab cos theta. Examples of scalar product of two vectors. The first one is work is a scalar product of force and displacement. वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे पास वर्क है जिसको हम स्केलर, तो हमारे पास इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इस वजह से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और उनका आंसर आपके पास स्केलर क्वांटिटी हासिल हो रहा है. इस वजह से ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा या डॉट प्रोडक्ट, और तभी हम इन दो वेक्टर्स के इन बिटवीन डॉट ही पुट करेंगे. और ऐसे ही हमारे पास पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और उनका रिजल्ट हमें पावर मिल रहा है, और पावर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. इस वजह से हमने इन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के इन बिटवीन हमने डॉट पुट किया, और डॉट ही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ dot product or scalar product. Now we consider about characteristics of scalar product. First property is that A dot B is equal to B dot A. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मसलन आप A डॉट B लेते हैं, ये हमारे पास A वेक्टर है, दूसरा आपके पास B वेक्टर है. A से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B के ऊपर, तो हमारे पास A के दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक A परपेंडिकुलर, दूसरा हमारे पास A पैरेलल. A पैरेलल यानी A डॉट B इज इक्वल टू A पैरेलल इंटू B, ये बन जाएगा A कॉस थीटा इंटू B, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा ए बी कॉस थीटा. और अगर हम लेते हैं यही वेक्टर आपके पास A है और दूसरा वेक्टर हमारे पास B है, अब हम B को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, B परपेंडिकुलर और B पैरेलल, और इसमें भी हमारे पास आ जाएगा B डॉट A इज इक्वल टू B का पैरेलल कंपोनेंट इंटू A, और ये हमारे पास आ जाएगा B पैरेलल B कॉस थीटा इंटू A, और आंसर हमारे पास बनेगा ए बी कॉस थीटा. तो दोनों सूरतों में रिजल्ट हमारे पास सेम रहा, चाहे इक्वेशन नंबर 1 हो या इक्वेशन नंबर 2 हो, रिजल्ट हमारे पास ए बी कॉस थीटा आया. इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. सो स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स ए और बी परपेंडिकुलर हों, ए डॉट B is equal to AB cos theta. If A is perpendicular to B, तो फिर हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा AB cos 90 डिग्री, और cos 90 is equal to 0, तो हमारे पास बन जाएगा रिजल्ट AB into 0. सो आंसर विल बी इक्वल टू 0. और इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम कह सकते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी के I डॉट जे, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं. जब परपेंडिकुलर होंगे जाहिर है कि इस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा यूज़ करते हैं, तो जब परपेंडिकुलर होंगे cos 90 इज इक्वल टू 0 होगा, तो I डॉट जे, जे डॉट के
एंड के डॉट आई, इनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमेशा 0 मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और जब ए और बी आपस में पैरेलल होंगे तो एंगल हमारे पास 0 बनेगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, लिहाजा रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी इंटू 1, रिजल्ट हमारे पास मिलेगा ए बी पॉजिटिव भी आंसर होगा और मैक्सिमम भी होगा। हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लेते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, चूँकि इनके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट है और उसके लिए हम cos थीटा यूज़ करते हैं। जब आई डॉट आई की बात होगी तो दोनों वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे, जे डॉट जे की बात होगी तो दोनों वेक्टर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे, और के डॉट के की जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों वेक्टर्स अलॉन्ग जी एक्सिस होंगे। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल हमारे पास 0 बनेगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, लिहाजा प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर का जो प्रोडक्ट आया वो 1 के इक्वल आएगा। जबकि अगर अपोजिट होंगे या डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उनके दरमियान एंगल 90 बनेगा और cos 90 इज इक्वल टू 0। और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो फिर हमारे पास रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 180 पुट करेंगे और ये बन जाएगा cos 180 माइनस 1, तो ए बी इंटू माइनस 1, रिजल्ट मिलेगा माइनस ए बी, और इनका जो प्रोडक्ट हमारे पास आया वो नेगेटिव आएगा। और अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मसलन हमारे पास ए डॉट ए लिया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ज़ाहिर है सेम वेक्टर है, वेक्टर सेम कब होगा? जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो गए तो हमारे पास वो वेक्टर सेम या पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे और उनके दरमियान cos थीटा और एंगल हमारे पास 0 मिलेगा, जो कि पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो लिहाजा हमारे पास आ जाएगा a इंटू ए स्केयर आएगा और cos 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास a स्केयर होगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय इटसेल्फ देन वी गेट स्केयर ऑफ दैट वेक्टर। तो जब आप उस वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी वेक्टर का हमारे पास स्केयर बन जाता है। Dear students, now we discuss about the last property of the scalar product. Consider we have two vectors a and b. A is equal to axi plus ayj plus azk. Second vector b is equal to bxi plus byj plus bzk. हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास बनेगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स आई को इन तीनों वैल्यूज़ से हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई डॉट बी वाई जे प्लस ए एक्स आई डॉट बी जी के प्लस ए एक्स आई को
इन तीनों वैल्यूज़ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए वाई जे को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस ए वाई जे डॉट बी वाई जे प्लस ए वाई जे डॉट बी जी के। ए वाई जे को भी बी एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, बी वाई जे से मल्टीप्लाई किया, बी जी के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ए जी के को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस ए जी के डॉट बी वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी जी के। अब ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जी आई डॉट के प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी जे डॉट के प्लस ए जी बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस ए जी बी जी के डॉट के। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, उनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 आएगा। और अगर आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन तमाम का प्रोडक्ट चाहे किसी भी ऑर्डर में हूँ लेकिन उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब डिफरेंट यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 0 मिलेगा, लेकिन सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमारे पास 1 मिलेगा। यही रिजल्ट हम पुट कर देते हैं इस प्रोडक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस ए एक्स बी वाई इंटू 0 प्लस ए एक्स बी जी आई डॉट के, डिफरेंट हैं 0 आएगा, प्लस ए वाई बी एक्स डिफरेंट प्रोडक्ट जे डॉट आई 0 प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 प्लस ए वाई बी जी डिफरेंट हैं प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस ए जी बी एक्स के डॉट आई डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, प्रोडक्ट 0 प्लस ए जी बी वाई डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, रिजल्ट 0 प्लस ए जी बी जी इंटू 1। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ए जी बी जी। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। बजाय हम सारी मल्टीप्लिकेशन करते रहें
तो हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम जो कंपोनेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जाहिर है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।